ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कतर में मोदी सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में खुलकर बात की। ऑल पार्टी डेलीगेशन ग्रुप 7 का नेतृत्व कर रही सुप्रिया सूले ने यहां प्रवासी भारतीयों को बताया कि किस तरह पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया। ऐसे लग नहीं रहा है कि देश से बहुत दूर हम सब आए। Well, this delegation has one of the most talented experts on India here. So what I would do is I will make a few remarks as why we are here, and I would request all my esteemed colleagues to speak for a couple of minutes about their experience here or why we are here. So I think it will become a little interesting, and we each one of us will speak for a couple of minutes, and then if any of you would like to ask some questions, we would be very happy to answer any questions that you have in your mind. But this entire delegation is here, and we are traveling to 4 countries. The first country is here today. We are here in Doha yesterday and today. Tomorrow we leave for South Africa. From there we go to Ethiopia. After that we will be going to Egypt, and then we go back. And there are 7 such groups which the Honorable Prime Minister, he had a thought in his mind, a vision that Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it. And what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा. And I think that is the message we have come here to give. And I think the whole message of this Indian democracy, we all come, the part of the 50% delegation is people from the Treasury and 50% are from opposition. But that's not the agenda here today. Today we have all only come as very proud, committed Indians who are looking for peace on this globe. And that's the legacy we want to leave for our children. आप सब यहाँ घर बार छोड़ के आए, अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ सोच के यहाँ तक आ पाए. Nobody likes to leave their homes, but everybody leaves home for a reason. I was just talking to the 2 principals, and I was overwhelmed by hearing that one of the principals has 10,000 students under her. The other has 6,000 students. I was just thinking, my God, शायद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितना नहीं बच्चे पढ़ रहे, उन बच्चों का आप एक शॉट में यहाँ पढ़ा रही है. So we're really happy to hear कि I'm so happy that you're teaching all our Indian children Indian values, Indian languages, Indian history, which they need to know. So it's a very close group here. I wish we could have had more people we could have met, but at some times we have to cap it somewhere. So unfortunately we couldn't host a lot of people. But the whole idea of being here, our beloved Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has made 7 groups. In every group there are 5 MPs and experts in every group, and each out of the 7 groups will be traveling 5 to 6 countries, and I'm sure you're following it. And we've been very fortunate enough that the world has really opened their doors for India, because every group that has gone, be it the media, be it the Indian diaspora, be it the businessman, every part of society has really looked forward. We've got a lot of very, very good coverage, and the whole only message that India is giving to the world is that we want peace. We want to live in peace and harmony, and we will not tolerate any attack on India anymore. We've tried every way of diplomatic relationships with our every neighbor, but it's unfortunate what has happened with Pakistan has not been a very pleasant experience. It was not our first choice to attack, and India has never initiated a war. We've always, if people have attacked us under duress, we have retaliated. It's not something we like. Our first choice is dialogue, and that's what we tried. But unfortunately, it didn't go. And I have seen the pain very, very closely in this Pahalgam, because 2 people who passed away or shot at were from my constituency. When I went to meet their families, the only thing, उनकी बीवी सिर्फ यही मुझे कह जा रही थी कि हमेशा ये जब से हुआ है,
जब मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे सिर्फ बंदूक दिखती है. They have not slept for a day and a night. The pain that those families have been through, we have all seen. Innocent citizens who just went on a holiday. Somebody celebrating their daughter's 10th standard result. Somebody got a promotion, so they went all the way to Kashmir. So these are very, very simple, innocent people have been targeted by these absolute. And we have to condemn this violence and zero tolerance towards all these things that are happening. And I think that's the message we came here. And terrorism is something, I think even Qatar has been so, I was really overwhelmed by the hospitality of the Qatar government and the people of Qatar. So I can imagine what you live here as one. And the entire Indian diaspora, even the government kept telling us how well India is doing and how much you have contributed to Qatar's growth. So I now, with much ado, I would request each of my colleagues to say a few words and then we'll open it to discussion. But I would like to thank each one of you for being here this evening and encouraging us on this mission. ऑल पार्टी डेलीगेशन ग्रुप 7 में अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं। उन्होंने यहां पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। पहलगाम में जो हुआ वो दुखद भी था, दर्दनाक भी था, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उससे परे था। किसी की आंखों के सामने उसी के पति को 2 फुट की दूरी से उसके सिर में गोली मार दी गई। किसी बच्ची या किसी बच्चे के आगे उसके पिता को गोली मार दी गई। कपड़े उतारकर उसका धर्म जानकर फिर मारा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ था। ये एक अलग संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। आज जब हम सब हैं, हम अलग अलग राजनीतिक दलों से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन वो विचारधारा, क्षेत्र, वो सब पीछे छोड़कर हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं, ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां से हथियार लिए, वहां से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। लेकिन जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि आतंकवादी हमला कोई हुआ हो। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरता नहीं है। आपने कभी देखा कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे, उनको दफनाने का काम किया जा रहा हो और उसमें पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, आईजी पुलिस और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर खड़े हों, प्रेयर मीटिंग में वहां पर हो? ये पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा आज दुनिया ने देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट, लंबी लिस्ट है, उसमें अगर किसी एक देश का नाम उभर कर सबसे आगे आता है जहां 52 इंडिविजुअल और एंटिटीज जो सीधे तौर पर टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट संगठन है, तो सारे के सारे वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के अभी के और पूर्व के मंत्रियों ने टीवी चैनल पे कहा कि दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी जॉब फॉर लास्ट 30 इयर्स। ये घिनौने कार्य वो पिछले 30 वर्षों से करते आ रहे और उनके खून से हाथ रंगे हुए हैं।
भारत ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले से लेकर आज तक हर सरकार ने प्रयास किए कि हमारे हर पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे संबंध हों। आज आप कतर में हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहां पर 50-50 साल से हैं, किसी को 30 साल हो, किसी को 60 साल हो गए। आज जब हम किसी को जाकर मिलते हैं, चाहे एमओएस इंटीरियर को मिले, एमओएस फॉरेन अफेयर्स को मिले, डिप्टी स्पीकर को मिले, अन्य लोगों को यहां पर मिले, हर किसी ने कहा कि हमें गर्व है भारतीय समुदाय पर जो कतर में आकर कतर के विकास में सहयोग दे रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस नेता मनीष ठाकुर ने भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर यहां बात की। भाइयों और प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भारतीय दूतावास का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर आपके मुखातिब होने का हमको एक अवसर दिया, और आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज यहां पर इस बैठक में शामिल होने के लिए आए। आप लोग यहां पर कतर में काम कर रहे हैं, और जो भारत की शाख है सिर्फ कतर में ही नहीं, इस पूरे इलाके में उस शाख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की शिद्दत है, आप लोगों की हिम्मत है, हौसला है कि आज कतर में जो भारतीय कम्युनिटी है वो सबसे अधिक मात्रा में है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लोग इतने दशकों से बसे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कामकाज से एक ऐसा यहाँ पर भरोसे का वातावरण पैदा किया कि और भारतीय भी यहाँ पर आकर अपनी रोजी रोटी कमाने में, इस मुल्क का पुनर्निर्माण करने में अपना योगदान डाल पाए। हमारे साथियों ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको ये बताया है कि हम लोग यहाँ पे कतर क्यों आए हैं, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, इथियोपिया जाएंगे, मिस्र जाएंगे। और उसका मुख्य कारण और मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कई विभिन्न धर्मों का, कई विभिन्न समुदायों का, कई भाषाओं का, कई किस्म के खान पान का एक बहुत ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। और ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी विरासत है, इसमें हमने सदा शांति से जीना और अपने पड़ोसियों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सन 1971 से लेकर 1972 से लेकर जब भारत ने दक्षिण एशिया का भूगोलिक नक्शा बदला और बांग्लादेश की संरचना की, और जो पश्चिमी पाकिस्तान की फौज पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, ज्यादतियां कर रही थी, उन ज्यादतियों को रोका, उनका आत्मसमर्पण करवाया। और तब से लेकर आज तक जो हमारा पश्चिमी पड़ोसी है पाकिस्तान, वो निरंतर और लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। भारत ने सरकारें
कई आई, कई गई। भारत ने बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत सहनशीलता के साथ इस चीज को रोकने का प्रयास किया। पर भारत के लाख प्रयासों के बावजूद ये जो पाकिस्तान का मंसूबा है, ये मंसूबा खत्म नहीं हुआ। और उसका सबसे नया उदाहरण पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती। आतंकवाद एक घिनौना कैंसर है जिसको सिर्फ हमारे रीजन से ही नहीं पर पूरी दुनिया से अलग करना, उसको नस्ते नाबूद करना जरूरी है। और इसीलिए हम लोग जो दलगत सियासत से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में ये संदेश लेके जा रहे हैं, उस संदेश का सिर्फ मतलब यही है कि ये मत समझिए कि ये आतंकवाद एक ही जगह तक सीमित रहेगा। अगर इसको रोका नहीं गया, इसको जड़ से उखाड़ा नहीं गया, और उसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान में स्थित है। ओसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में नहीं पकड़ा गया था, वो एबोटाबाद में पकड़ा गया था। तो हमारा पूर्ण उद्देश्य ये है कि सारी दुनिया को इस आतंकवाद के खिलाफ संगठित करना, जिससे कि लोग शांति से रह सकें, अपना जीवन यापन एक बढ़िया तरीके से कर सकें और अपने परिवारों की बेहतरी के लिए शिद्दत से और अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। इसी संदेश को लेकर हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। एंड वी वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू should also do whatever you can to see that this message that the scourge of terrorism has to be eliminated from the world should go to every nook and corner of this land. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।